Hello everyone, welcome back. So today in this video we are going to practice some questions based on our previous topics. So I have some sheets of question for you. I have 1, 2, 3 and 4 sheets of question for you. So actually ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपके एनसीईआरटी को स्किप करे गए हैं पर उस पर बेस्ड ही है, मतलब उससे खूब ज़्यादा अलग नहीं है, पर मैंने जितना पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया भी है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो हमारा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, पर आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। सो विल डू प्रैक्टिस टुडे। ओके, सो let us pick the first sheet. We'll start with some basic questions and then we will move. Okay, so before I start I would give a very genuine question. I will start with some easy questions. So how is quantity of motion governed? क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम लोग कैसे गवर्न करते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू गवर्न? ओके, विच क्वांटिटी यू कैन राइट? ओके, हाउ यू कैन राइट? सो क्वांटिटी ऑफ मोशन इज गवर्न्ड बाय which quantity of motion is governed by which quantities actually governed? Okay, so you know that mass of the body and velocity of the body. Okay, so quantity of motion is governed by which quantities? Mass and velocity. Okay, the second question, momentum is blank quantity. You know it very well, a vector quantity. Oh sorry, you know this questions, I think it's very easy. Okay, what is the SI unit of impulse? So I'll start with the first question. Now this marker is not working, so let's kindly give me some seconds for it. Okay guys, now let us start. तो पहले क्वेश्चन है इम्पल्स, मतलब इस शीट से नहीं है, मतलब मैं आपने से दे रहा हूं। इम्पल्स इज व्हाट? अ स्केलर, बी टेंसर और सी वेक्टर. So you know that impulse is, अब इसको देख के तो पता चल गया कि वेक्टर है, फोर्स इनटू टाइम. द प्रोडक्ट we know that product of a vector and a scalar, a product of vector and a scalar is vector. किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी, if a scalar quantity into a vector quantity gives you a vector, we know this. That is why impulse is a vector quantity. Okay, so I give you the reason also. Now let us start with numericals now. Okay, so the first question is, where it is, a hammer weighing, you can skip this part. ठीक है, जितने देर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप इसको स्किप करके आप सीधा सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके, weighing 3 kg, or you can pause the video after writing my question and you can solve. Okay, 3 kg moving with a velocity of 10 meter per second strikes against the head of a spike, and drives it
and drives it into a wooden block, if the hammer comes rest if the hammer comes to rest in 0.025 second, then the impulses. Okay, let us see what is given here. थोड़ा क्वेश्चन बना है. A hammer weighing 3 kg, एक हैमर है जिसका वेट है 3 kg. इट इज मूविंग ना. अब देखिए यहाँ पे समझने वाला है. अब हैमर तो फेंकते नहीं है, तो इट्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हेड ऑफ अ स्पाइक. स्पाइक कुछ नहीं है, नेल है. ये स्पाइक का मतलब होता है नेल. ठीक है, आप इसको नेल भी लिख सकते हैं. एंड ड्राइव्स इट इनटू अ ब्लॉक. इफ द हैमर कम्स टू रेस्ट इन 0.025 सेकंड, देन द इंपल्स इज. देखिए, सपोज करिए एक वुडन ब्लॉक था, यहाँ पे एक नेल था. ठीक है, इस नेल से इस हैमर ने इसको, मतलब इसको हम लेकर के आए, तो जिस झटके से लेकर के आए वो 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी था. इसका मास जो था हमें 3 kg था. हमें बताना है कि इंपल्स कितना हुआ. इंपल्स तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है. हमारे पास मास गिवन है, मास इज 3 kg. वेलोसिटी हमारे पास गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकंड. ये फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, और ये हो गया ना. Strike against the head of a spike and drives it in. Okay, initial velocity is given in the question or not? Let me check. So comes to rest. No, it's not given. So okay. So B is here. Now initially क्या था? Initially hammer का velocity 0 होगा, because मारने से पहले उसका velocity तो 0 ही हुआ था ना. तो इसलिए velocity is 10 मीटर पर सेकंड. अभी हमको बताना है कि impulse कितना इम्पार्ट हुआ है. Okay. So we have to find what is J. जे से डिनोट करते हैं ना, मैंने उस वक्त आई लिख दिया था. ओके, तो बहुत आसान है. आप देखिए, जे इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम. फोर्स कैसे निकालेंगे, mv माइनस mu बाई टी इनटू टी. अब देखिए, इस टाइम में यहाँ पे कोई काम नहीं है अब, बिकॉज टाइम और टाइम मिलकर कैंसिल हो जाता है. तो आप सीधा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, mv माइनस mu. ठीक है, अब mv माइनस mu सिंस 0 है, तो आप mv फाइंड कर लीजिए. m इंटू v क्या हो गया, mass into velocity 30 kg meter per second. So this is the way you can solve. If you want to note it down, you can. Okay, so you can note it down. Okay, okay. So wait. Oh, there is a mistake. Okay, wait. Actually, we haven't read this statement. The hammers come rest in 0.05 second. Final velocity is 0. Final velocity is 0. So this becomes mv. This is final velocity is 0. So this becomes 0 minus 30. This becomes minus 30 kg meter per second. Remember what mistake I did? You should not repeat that. Okay. So this was our first question. Okay. Let us move to our next question without wasting any time. See the next question. So the next question is similar to that. A ball of mass 3 kg initially moving with a velocity of 4 meter per second, and moving with after 4 second. So after 4 second it strikes a wall, strikes a corner of wall and changes its direction, and
increases its velocity to 8 meter per second. Okay, calculate change in momentum. देखो P से मैंने लिख दिया. Okay, this is momentum. Now come to this question. This is question number 2. Now ball of mass 3 kg initially moving with a velocity of, so mass imparted to us is 3 kg moving with a velocity of 4 meter per second. So u is 4 meter per second. It strikes a corner of a wall and changes its direction and increases velocity to 8 meter per second. So v is equal to 8 meter per second. Now you have to calculate delta p. Delta p is what? मतलब change in momentum is what? अभी देखिए ये क्या है एक्चुअली. सब जो एक वॉल है, इधर से एक बॉल गया और इसके कॉर्नर पे लगा, और इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया और इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया. कभी कभी होता है ना, बॉल किसी एज पे लग के और ज्यादा तेज हो जाता है. ओके, सो वही चीज है यहाँ पर. अब चेंज इन पी कैलकुलेट करना बहुत इजी है. डेल्टा पी इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू बाई, ओके, मास इंटू वी, तो पी हो जाएगा 3, 8 माइनस 4 4, 12 kg meter per second. Okay, I hope you have understood. Okay, now let us move to the with a velocity. Now it's okay. Now okay, next question we'll see. Okay, so these were two simple questions based on the last video, and these were based on impulse. Okay, so I already explained you impulse in the last video. ठीक, चलो समझते हैं आगे का. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे भी कर लेंगे. चलो, रेशियो ऑफ SI unit of force to CGS unit is what? SI यूनिट से CGS यूनिट का आपको कंपैरिजन करना है. तो SI यूनिट क्या हो गया? और फोर्स का SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो मैंने न्यूटन नहीं लिखा, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने न्यूटन ना लिख करके इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, तो ये पता है 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 9. अभी 9 को हमने कैसे लिखा था? 19. अच्छा रुको, इसको ऐसे लिख के दिखा देते हैं. ये 1 न्यूटन इज टू 10 टू द पावर, अच्छा, so the problem is 1 Newton. Okay, this is an easy question. Now you do it by yourself because we have a lot of question to do today. Okay, so this is an homework for you. Okay, you check your like this. Okay, because you know the relation, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 9. So convert this 10 to the power 5 9. 10 to the power 5 9 का मतलब क्या है? 10 to the power 5 ग्राम by सेंटीमीटर स्क्वायर. सो उसी को कन्वर्ट कर लो केजी में और सेंटीमीटर को कर लो मीटर में. ओके, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर करके उसको कैलकुलेट कर लो. ओके, सो दिस वे यू कैन डू. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. आई एम नॉट डूइंग इट सॉल्यूशन. दिस हैव टू डू बाय योर होम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वी हैव फिनिश्ड दिस. लेट्स कम टू दिस वन. एंड let's come to this one. Again a similar type of question, but here you have to apply calculations. A body of, मैं सीधा डेटा लिख देता हूँ. मास उसका है 2 kg. ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्राइक्स विथ अ वॉल, एक वॉल से स्ट्राइक करता है. ओके, विथ अ वॉल with, इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है with the same speed. Okay, collide with a wall with speed with u is equal to 10 meter per second. Okay, and rebounds with the same
स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड से रिबाउंड कर रहा है। तो सेम स्पीड से रिबाउंड कर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्चुअली अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट, और ये टाइम ऑफ कांटेक्ट दिया है हमें 1/50 ऑफ अ सेकेंड, 1/50 सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, अब देखो यहां पर एक्चुअली v माइनस यू करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इस वाले डायरेक्शन को हम लोग, जिस तरह बॉल जा रहा है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको नेगेटिव ले लीजिए, दोनों में से कोई एक को नेगेटिव आपको लेना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू टेक, बिकॉज ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स, ये एक्चुअल फोर्स है, और इधर से आने वाले फोर्स को तब आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं आपको इनिशियल वेलोसिटी को मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेके देखता हूँ, ठीक है। अभी देखिएगा इसको, तो हमें कैलकुलेट करना था बॉडी का चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना था इसमें, सो वी हैव टू, ओके, सो हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सर्टेड। तो फोर्स एक्सर्टेड ये हमें कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना एक्सर्ट होगा। तो हम जानते हैं फोर्स इज व्हाट, m into a, m into v माइनस u बाई t। अब इजी हो जाएगा। अभी देखिए मैं चेंज करूंगा इसको, अभी ये क्या था m v को 10 माइनस ऑफ, अभी देखो ये वाला माइनस मैंने लिया है, अभी मैंने इसको माइनस मान लिया है, तो 10 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा हमको 1/50। तो अब इसको जरा से कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, लेट्स कैलकुलेट इट। सो दिस बिकम्स F इक्वल्स टू, मास हमारे पास था 2 इंटू 20 बाई इंटू 50, बिकॉज वो ऊपर चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 5, सो दिस इज 20 and this is 2 zeros, so this becomes 2 into 10 to the power 3, okay. So in this way you can solve, understand. So this is 10 plus 10 20 into 50 is, so this is 1000, and 1000 into 2 2000, 2 into 10 to the power 3, okay. So in this way you can solve. Now we'll see the next question, okay. The next question now. Okay, let us pick this sheet now. So the same kind of question is there. So okay, let us take a different kind of question. Okay, a different kind of question I have for you now. A bullet का क्या, इसका मास है, ये हमें गिवन है 10 ग्राम, ठीक है। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, और ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है विद अ वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, इसका यू लिख दो। एक वुडन ब्लॉक को ये स्ट्राइक करता है, ये एक वुडन ब्लॉक है, और ये हमारा बुलेट है, ठीक है, ये हमारा बुलेट है, और इसको स्ट्राइक करता है, ये इसको स्ट्राइक करता है। उसके बाद क्या होता है, एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आया मतलब v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स एंड कम टू रेस्ट इन टाइम इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड, इतने सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाता है। तो बताओ डिस्टेंस वो कितना चला, और ये भी बताओ फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा क्या गिवन है। देखो एक बुलेट था, उसका मास 10 ग्राम है, वो गया वुडन ब्लॉक में स्ट्राइक कर गया, उसका वेलोसिटी 0 हो गया क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। अभी हमें वो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस वो चला और कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा फोर्स कितना किस पे निकालना है, अच्छा वुडन बॉक्स पे, इस वाले पे एक्चुअली फोर्स निकालना है। फोर्स कैलकुलेट द फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑन वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स पे कितना मैग्नीट्यूड लगा,
ठीक है। चलो अब पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा फॉर्म, अच्छा इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा यहाँ पर, देखो तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, ठीक है। v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, 225 plus 2 zeros plus 2 into a into s. Now a is what? So minus 150 by, so this is minus 150 and we take 2 zeros again, so divided by 3 into s, so we have to s calculate it. So 0 is equal to, now 2250 plus 2 into, now this becomes 5000, so this becomes minus of 10s, this becomes 5000, now minus of 10s. Okay, take this to this side, so this becomes 10,000 s equals to 2250. Okay, cancel two zeros. Arey yaar, this I don't have space. Okay, now it's okay. So I am substituting this side to it and we get 10,000 s equals to 22500. Cancel it. Okay, now s is equal to what? 2.25 मीटर। तो कितना डिस्टेंस हो चला यहाँ से यहाँ तक? दिस इज 2.25 मीटर। यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, जितना इसका मास, जितना इसके मोमेंटम में चेंज आएगा उतना फोर्स लगेगा, वेरी सिंपल। सो F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई t, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, m मास कितना, 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, तो ये आएगा मेरे पास 0.01। ओके, सो 0.01 इनटू v माइनस u, v और u, अरे ये दो, और इसको 2 0 ऊपर लगा दो। अच्छा, तो ये तो 5000 आएगा, तो 1/100 इंटू 5000 कर लीजिए आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये फोर्स जो होगा हमारा -15 न्यूटन होगा, लेकिन हमसे पूछा गया फोर्स का मैग्नीट्यूड, हमसे डायरेक्शन नहीं पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड ही हम 15 न्यूटन ही लिखेंगे, इसको 15 न्यूटन ही लिखेंगे, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Now in this type of questions you need to just simplify the calculations. The more you simplify the calculation, the more better you get. Okay, now next question I am going to discuss. अब ये ग्राफ है, ग्राफ में प्रॉब्लम होता है ना, ग्राफ से क्वेश्चन है। ये है फोर्स, ये है टाइम, इधर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, इधर हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया न्यूटन में, इधर हमने उसको रिप्रेजेंट किया सेकंड में। अच्छा, चलिए यहाँ पर था 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर था 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बॉडी जो है कुछ इस तरीके से गया है, और यहाँ पर ये टाइम जो है हमारा, ये भी 10 सेकेंड है, ठीक है। अभी हमें बताना है ये एरिया, दिस इज द एरिया, व्हाट डज एरिया रिप्रेजेंट, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा ये बताइए, एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहली चीज, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है पहले। अच्छा, आपने पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, इसका स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता था, पर इसका जो एरिया था ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये एरिया जो था ये इसका डिस्प्लेसमेंट बताता था। तो एरिया जो होता है, वो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन को बताता है। जाहिर तौर पे एक ट्रिक के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। तो इम्पल्स J इज इक्वल टू F बाई टी होता है, ठीक है, F इंटू टी होता है। तो एक बात बताओ, ये इम्पल्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स टाइम इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको इम्पल्स ही मिलेगा। तो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स। अब तुमसे पूछ रहा है कैलकुलेटेड, अब इसको कैलकुलेट करिए, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है बट मैंने बोल दिया कि चलो इसको कैलकुलेट करो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एरिया को कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे इम्पल्स को कैलकुलेट करते हो वैसे भी कर सकते हो, और नहीं तो एरिया अंडर को आप लगा लो, ये एक ट्रापीजियम बन रहा है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड, ये भी लगा के कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व। ओके, तो आप बस इतना मुझे पकड़ाना था इसमें, ठीक है। और या फिर आप सीधा लगा लो, 4 इंटू टाइम लगा लो,
उससे भी निकल जाएगा इसका एरिया, ठीक है। लेकिन सही एरिया निकालने का तरीका है, आप इसका एरिया कैलकुलेट करिए, सम ऑफ पैरेलल साइड कर लीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कूटर जिसका मास हमारे पास है 150 kg, ये वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा टू, ओके। सो वी हैड एन स्कूटर ऑफ मास, okay, so we had a scooter whose mass was what was its mass, so it was 100 kg around, it was moving with an initial velocity of 30 meter per second, okay, and it was come to rest. Now what force will require to keep it at rest in time t is equal to 10 seconds. Now how will you calculate? F is equal to mv minus mu by t, m into v minus u by t. So now you can calculate. So 100 into v is 0, 0 minus 30 by 10. Okay, now this becomes 3. So this becomes minus 300 Newton. Now in this way you can calculate. Okay, so we are jumping on to the next question now. Okay, so let us just jump to the next question now. Okay, so or we have completed, or okay, we have left with one more question. Now we have this graph. This is velocity by time graph. Now this is velocity time graph is like this, okay. Now you can just give me a minute, okay. So this is velocity by time graph. This is of meter per second, and let us give this a second. So this is 1 2 3 4 5, and this is, let us say here it is 0, and here it is 10 meter per second. Now here it is, this point is 10 second. You have to calculate what is the force of the body. तो देखिए पहली चीज कि बॉडी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे बॉडी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी था। कैसे? आप देखिए 0 सेकेंड पे बॉडी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका v देखिए 0 हो गया है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इसका v 0 है, v 0 हो गया। टाइम तो हमें क्या चाहिए होता है, चेंज इन टाइम चाहिए होता है, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स 10, तो सीधा लिख लीजिए 10 सेकेंड। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, सो एफ इज एम वी माइनस एम यू बाई टी। क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया ना, पता था। सो एम वी माइनस यू, सो एम मास, ओके, and write one data also, that mass is, don't write mass, let us leave it like that only. So m into v minus u by t. Now you can just m को आप let us say m को रख लो 10 kgs, okay, इसको 10 kg रख लो और इसको कैलकुलेट करना, because very simple calculation it is, okay. Now the next question we are going to discuss. So we have discussed I think 4 or 5. Now this is the only type of question asked, okay, no need to practice much more difficult questions. Okay, you get question on graph, then try to actually solve question of graphs, not of high level questions and all. No need to solve, okay. Okay, now I have a question for you, that how much a dumbbell देखा है, so a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from height of 80 मीटर। तो हमें बताना है कि एक डंबल है, उसका मास 10 kg है, how much momentum, we are doing mistakes today a lot, okay, we are doing a lot of mistakes,
how much momentum dumbbell of mass 10 kg, mass of dumbbell is 10 kg, transferred to the floor if it falls from a height of 80 centimeter it is. Okay, so this is h is equal to 80 centimeter. See now, see here, कितना मोमेंटम एक डंबल इंपार्ट करेगा फ्लोर पे जब उसका मास 10 kg है और वो हाइट 80 सेंटीमीटर ऊपर से गिर रहा है। तो एक बात बताओ, ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई ना। सो u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। दो डेटा हमारे पास है, h है और u है। क्या हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट वेलोसिटी? क्योंकि मोमेंटम निकालने के लिए हमें पता है मास और वेलोसिटी दो क्वांटिटी चाहिए हमें। तो क्या हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? देखो बहुत लोगों के मन में ये भी आएगा कि यार ये तो मोमेंटम तो जीरो हो गया। नहीं, इनिशियल मोमेंटम जीरो हुआ, फाइनल मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम पे डिपेंड करेगा ना इस मोमेंट पे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो छोड़ा जाए 80 सेंटीमीटर ऊपर से तब उसमें कितना मोमेंटम इंपार्ट करेगा। तो 80 सेंटीमीटर को पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आएगा 0.8 मीटर। ठीक है, अभी क्या करना है, इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। हमारे पास u है, h है, याद करो इक्वेशंस ऑफ मोशन, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, याद है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फ्री फॉल का केस है ये, याद रखो। सो v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, v स्क्वायर नहीं पता है, निकालना है, ये 0 और ये हो जाता है 2, तो ये बनेगा 2gh, तो 2 इंटू 10, ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हम लोगों ने, h हो गया 8/10, कैंसिल करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16, v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16 इज प्लस माइनस 4। ठीक है, वेलोसिटी 4 आ गया, इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यार अगेंस्ट ग्रेविटी थोड़ी जा रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ही जा रहा है ना। तो निकालो इसका, P is m into v. Now m is what? 10 kg. Velocity is what? 4 meter per second. This is 40 kilometer per second. Now in this way you can solve. Now the next question is, and stop the video and try it by yourself. Okay, then if you are in case you are not able to solve the question, then you can refer to the video. Okay, now all questions we have covered, I think. Okay, now this question is important. Now see there, a machine gun has a mass 4 kg. It fires 50 gram bullets at the rate of 30 bullets per minute. Okay, at speed of 400 meter per second. Okay, so calculate the force required to keep gun in position. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आप पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आना सॉल्यूशन पे। अभी देखो, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हम बुलेट को फायर करते हैं, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का एप्लीकेशन होता है बच्चों। जब हम लोग गन से फायर कर रहे होते हैं बुलेट को, तो जितना वेलोसिटी से बुलेट, जितना मोमेंटम से बुलेट आगे जाता है, उतना हाथ आपका उसी वेलोसिटी से पीछे जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही पार्ट है, पर मैं इसको इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना वेलोसिटी से वो आगे जाता है, उतने वेलोसिटी से आपका हाथ पीछे आता है, आपको जर्क लगता है। तो गन को उसी पोजीशन में रखने के लिए कितना एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायरमेंट होगा, वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, मास ऑफ गन हमें दिया हुआ है 4 kg, मास ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है हमें 50 ग्राम है 5
50/1000 kg, ठीक है, इसको इतना कह दो। तुमसे पूछा कि फोर्स कितना रिक्वायर हुआ गन के लिए, तो ये तो इजी है ना। अब क्या करेंगे, अभी 30 बुलेट्स पर मिनट ही फायर कर रहा है, मतलब 30 बुलेट कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो एक बुलेट कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। एक बुलेट को कितना सेकंड में फायर कर रहा है, 2 सेकंड में। अभी समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का हम जानते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम अपन व्हाट, मोमेंटम अपन टाइम। तो टाइम निकाल लो, सो m इंटू वी, सो दिस इज 5000 इंटू वी। वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें दिया हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये कितना है, स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज 400। नाउ यू एक्चुअली कट दिस zeros, you get 10/50, so you get 20 Newton. In this way you can add, wait, divided by time, so you get 10 Newton. आपको समझ में आया आपने कैसे इसको कैलकुलेट किया 10 न्यूटन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इन दिस वीडियो। ओके, नाउ इन केस इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन द video, you can actually comment it down below, because we should also know that what is correct or not, whatever we are teaching is correct or not. If there is a mistake in it, please convey it. Okay, so we are done with this. Okay, we are done. Okay, and if there is any mistake, then please tell us. Okay, this was a good question. So now we have covered all types of questions that can be made on this kind of things. Okay, so we will, oh wait, okay, actually skip this part, okay, it's better to skip this part. I think most of you would have not understood this, because ये actually न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा। ओके, आई विल टेक दिस क्वेश्चन व्हेन आई विल कंप्लीट न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, तब मैं ये क्वेश्चन ले लूंगा, ये क्वेश्चन मैं ले लूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, you can actually refer to us in the description. There is a link, and it is a Google document, so you can actually open it and you can practice some question in it. There are NCERT questions also. I have discussed some question here also. If you practice this one and whatever is given in the description, you will master all the previous topics. Okay, now it's time to sign off. So goodbye and take care.